Here is Rakesh Kumar Singh, social study teacher of Pankur Public School. You must have remember in my last class or in my last video, I had started a new chapter of geography of class 7, the structure of the earth. And in this chapter, I had discussed about the integral structure of the earth. In this subject, in this subtopic, and I had made you understand about the layer of the earth, crust, mantle, deep. I had also discussed about the Sima, Neep. Today I am going to discuss with the new subtopics: minerals, rocks, types of rocks, and rock cycle. So simple minerals, we know that minerals play a very vital role in our life. You can say in the modern period, in the modern world, the development of any nation depends how much minerals that nation has, and also development of nation depends on diversity and minerals. So in present times, the country, nation, state which have diverse types of minerals, they are rich, and also the industrialization is also very high in that particular nation or state. So here we are going to understand about the definition of minerals. So what is mineral? Simply, minerals are naturally occurring inorganic substance. Means minerals what? Minerals is the natural. It is made by natural. It is not made by human being. So naturally, it is found in our environment. Naturally occurring inorganic. Means what is inorganic? Means what? Inorganic means simply we say living things, non-living things. So here the inorganic means this is the, you can say this is the dead, non-living things, all rocks, all minerals, things, all inorganic. Secondly, found in the earth, they contain a single or a combination of elements. Means minerals may have single elements or it may be the combination of elements. Means also maybe one single elements minerals, or on the other case also maybe more than one element. Next one, they have different chemical composition. You know that you must have read in chemistry in the further classes, class 8, 9. That all minerals have their chemical composition, number of atoms, number of molecules. See, all make the chemical composition. So they have different chemical composition. Definite means what? Definite means the each and every minerals have their particular chemical composition. So that chemical composition determine the characteristics or identity of a particular mineral. And physical property. What is physical property? You know that few minerals are very shiny, few are very flexible, few are very hard. So these are the like the it means colors. Few minerals have the red colors, black color. The color are the part of physical property. Hardness is the part of physical property. Texture is the part of physical property. So these are the physical property. They may be metallic or non-metallic. Metallic or non-metallic? Metallic means metal, means that contains the proportion of ions. And you know that what is the metals. And some may be non-metallic, like coal. Coal is the example of non-metallic. Petroleum,
नॉन मेटेलिक, लाइमस्टोन नॉन मेटेलिक, all are the minerals but they are non metallic. Means if the minerals have the proportion of metal, that is called metallic, like an iron ore, copper, all are the metallic. So this is the definition of minerals. अब now rocks क्या है? Rocks are combination of various minerals and include all the solid materials of the earth crust. Rocks क्या है? तो rocks are combination of various minerals. हम minerals में क्या देखें? Minerals contains elements, single elements and more than one elements. And rocks में क्या है? Rocks is a combination. Means rocks हो सकते एक रॉक में जो है more than one mineral भी मिल सकता है. ये क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन. एक रॉक में जो है मोर देन वन मिनरल्स भी हो सकता है. तो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड इंक्लूड ऑल द सॉलिड मेटल्स. जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट बोलते हैं वो किसमें उसे काउंटिंग होता है? उसको हम बोलते हैं रॉक. तो रॉक्स एक बात हो, रॉक्स हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है. जब चौक जिसे आप बोर्ड पर लिखते हैं वो क्या बहुत ही सॉफ्ट है, और पत्थर क्वार्टरजाइट जो है बहुत ही हार्ड है. तो रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड इंक्लूड ऑल द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. दे डू नॉट हैव डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन. और इसका रॉक्स क्या है? इसका अपना कोई डिफरेंट निश्चित केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है. ये हो गया रॉक. तब बात कर लीजिए मिनरल्स के बारे में और रॉक के बारे में. अब बात करें टाइप्स ऑफ रॉक के प्रकार. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. इग्नियस क्या है? इग्नियस when the magma of the interior of the earth come out and when they get solidified due to cold, that become solid and that is called igneous. क्या ये? जब पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा बाहर निकलता है, तो जो मैग्मा बाहर निकलता है, जब वही मैग्मा जम जाता है तो उसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स. इसमें क्या होता है? कुछ मैग्मा जो होता है वो अर्थ के नीचे ही जम जाता है और कुछ मैग्मा जो है वो अर्थ के ऊपर आके जमता है. तो जो अर्थ के नीचे जमता है उसको बोलते हैं इंक्लूसिव या प्लूटोनिक रॉक. इन मतलब क्या होता है? अंदर. तो किसको बोलेंगे इंक्लूसिव? यानी कि जो अर्थ के क्रस्ट से ऊपर नहीं आया वो अंदर ही ठंडा होकर वो जम गया. जैसे ग्रेनाइट और डोलेराइट, ये क्या है? दोनों जो रॉक्स जो है दे आर एग्जांपल ऑफ द इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स. कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो जमीन पर ऊपर आकर ठंडा होते हैं. तो इस एग्जांपल क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव या बोलते हैं वोल्केनिक, बेसाल्ट, और ये है ऑब्सिडियन. ये जो दो रॉक्स है, ये और भी रॉक्स है. यानी कि इग्नियस रॉक्स वाले इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है? वो बनता है मैग्मा से. जब कोर से, हम पढ़े कोर से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो ठंडा होता है. अगर वो क्रस्ट पर आने से पहले ठंडा हो गया तो उसको इंक्लूसिव बोलेंगे. और जब क्रस्ट पर आकर ठंडा होकर पत्थर बनता है तो उसको हम एक्सक्लूसिव बोलेंगे. उसी तरह से इसे एक फीचर उसको बोलते हैं क्रिस्टल फीचर. क्रिस्टल यानी उसका रेसा जैसा बन जाता है. जो अर्थ के नीचे है, जो कि अर्थ नीचे है तो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका जो क्रिस्टल फॉर्म होगा बड़ा बड़ा होगा. और जो अर्थ के ऊपर आएगा, बाहर काफी ठंडा है जमीन के अंदर से, तो जल्दी ठंडा हो जाएगा. ऊपर का जो उसका जो क्रिस्टल फॉर्म जो है तो उठा उठा पार्ट होता है वो जो है छोटा छोटा. ये हो गया इग्नियस. सेडिमेंट्री क्या हो गया? सेडिमेंट. इसका मतलब क्या? जोड़ना. वी नो दैट ऑन आवर अर्थ सरफेस कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बोथ आर मूव साइमल्टेनियसली. यानी कि निर्माण और विनाश दोनों साथ साथ चल रहा है. एक तरफ रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो नेचुरल एजेंट जो है उसको डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। रिवर्स है, वाटर है, विंड है, सनलाइट है, क्या करते हैं ये जो है ये रॉक्स को तोड़ते हैं, ये ब्रेक करते हैं। इसको हम बोलते हैं, अगर रिवर पर नदी बहती है तो देखते हैं नदी में पानी बहता है तो अपने तेज स्ट्रीम से धार जो है पत्थर को काटी रहती है। हमारी नदी आप देखें, गंगा नदी, किसी नदी में बालू सैंड है, सैंड कैसे बनता है? वो सैंड उसी बड़े बड़े चट्टानों को कटते 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 छोटा छोटा पार्ट हो गया। उसी तरह से विंड भी जो है जब तेज हवा चलती है तो वो भी जो है कुछ चट्टानों को काटता है, वही पत्थर को काटते रहता है। कुछ जो है सनलाइट जो है, सनलाइट से क्या होता है, दिन में ड्यू टू हाई सनलाइट इंसोलेशन एनी रॉक्स एक्सट्रैक्ट, वो बड़ा होता है, फैलता है, फिर रात में जो है ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, बहुत हार्ड है, वो फैलता सिकुड़ता है, इससे भी क्या होता है, क्रैक होता है और वो भी जो टूटता है। तो जो टूट रहा है तो क्या होता है, रिवर जो है, हवा जो है उसको बहा के, उसको उड़ा के वो जाकर कहीं उसको जमा कर देता है। जो जमा उसको सेडिमेंट तो जमा होता है, बाद में वही जमा होते होते ड्यू टू हाई प्रेशर कंप्रेशन वो जो है एक बड़ा सा माउंटेन का रूप ले लेता है। हिमालय माउंटेन क्या है, हिमालय माउंटेन उसी का एग्जाम्पल है। तो सेडिमेंट रॉक्स क्या है, सेडिमेंट रॉक्स जब इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स जब इनका इरोजन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो जाके इनको रिवर जो है वो जाके किसी समुद्र में जमा कर देती हैं और बाद में जब वो जमते 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 जो है वो माउंटेन बनता है, रॉक्स बनता है। यानी कि उसको बोलते हैं स्ट्राटा बोलते हैं, क्योंकि स्ट्राटा मतलब क्या होता है, लेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम, फॉसिल कोल जो है, इसको क्या है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट। सिंपल सेडिमेंट मतलब क्या हो गया, इसमें लेयर होता है। अगर आप कहीं जाएंगे घूमने के लिए किसी माइंस एरिया में, तब देखिएगा अगर वहां पर ऐसा होता है तब देखिएगा आपको लगेगा कि जो रॉक्स जो है, जो चट्टान जो है, वो लगता है कि कोई इसको जोड़ दिया है, चिनाई किया हुआ, एक ऊपर एक आपको नजर आएगा। तो कैसे बना, वो सेडिमेंट जो है वो सिल्ट जो है जमते गया जमते गया जमते गया, ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फिक क्या होता है, तो मेटामॉर्फिक होता है जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू हाई कंप्रेशर, वो अपना जो उसका फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक उसमें बदलाव हो जाता है। अधिक गर्मी से ड्यू टू हाई हीट टेम्परेचर प्रेशर, उससे क्या होता है, जो रॉक्स होता है, जो उसका पुराना जो उसका ओल्ड जो उसका केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव होता है। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें इतना अधिक हीट होता है कि उसके आसपास जो चट्टान जो है उसमें बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई कंप्रेशन से जो बदलाव होता है, जो चेंज होता है, और उसके बाद जो नया चट्टान बनता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए कैसे क्या लिखा है, सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। और लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन जो है ये क्या है, लाइमस्टोन इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तभी लाइमस्टोन पर जब है, जब अधिक हीट और प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा मार्बल में। ठीक है, मार्बल बदल रहा है। उसी तरह से सेल, जो सेल पत्थर होता है, उसी तरह से ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर ये बदल जाएगा स्लेट में। ग्रेनाइट जो हो जाएगा वो बदल जाएगा डिश में। तब देख रहे हैं कि जो रॉक जो है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, उस पर अधिक दबाव के कारण, अधिक प्रेशर के कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण जो है उसका फिजिक्स और उसका केमिस्ट्री में उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे ये बनता है रॉक्स और टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हम लास्ट में बात करते हैं रॉक साइकिल। साइकिल मतलब क्या होता है, साइकिल पहिया क्या होता है, घूमते रहता है, चक्कर लगाता है, इस तरह घूमते रहता है। पढ़ चुके वाटर साइकिल, उसमें क्या करते हैं वाटर साइकिल में कि पानी जो है वही जो है कभी गैसेस फॉर्म में बनता है, कभी सॉलिड फॉर्म में बनता है, कभी लिक्विड फॉर्म में बनता है और चेंज होता रहता है। तो उसी तरह से रॉक्स जो है, रॉक्स जो है इग्नियस रॉक्स,
वो सेडिमेंट्री बदलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स वो बदलता है मेटामॉर्फिक में। देखिए ये मैग्मा चैम्बर है, अब यहाँ से मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा बाहर निकलता है तो ठंडा हो गया, तो फिर क्या बन गया, ये बन गया इग्नियस रॉक्स। अब इस जो इग्नियस रॉक्स जो है इसका इरोजन होगा, हम बताएं सनलाइट से, रिवर से, हवा जो है इसको काटेगा तोड़ेगा, तो इसका पार्ट जो है टूट टूट के जो है रिवर जो है उसको बाहर पे जमा करेगा सी में, तो जमेगा, तो यह बनेगा सेडिमेंट्स। मैंने क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए यही जो है इग्नियस रॉक जो है यही टूट कर फूट कर कट के जमा होता है यहाँ पर, और ये क्या बनता है, ये बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। और फिर यही सेडिमेंट क्या हो रहा है, प्रेशर, और ये क्या हो रहा है, ये सेडिमेंट जो है यहाँ जमा हो जा रहा है, तो सेडिमेंट रॉक्स बन रहा है। और यही सेडिमेंट्री रॉक जो हीट जो होता है अधिक प्रेशर के कारण ये बदल जा रहा है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यही मैग्मा चैम्बर का जो मैग्मा है ये इग्नियस होता है, फिर इसमें जो बदलाव चेंज होता है तो ये बन जाता है सेडिमेंट्री, और फिर बनता है मेटामॉर्फिक, और फिर यही मेटामॉर्फिक रॉक जो है फिर जो पिघलता है तो फिर बनता है मैग्मा चैम्बर। अब देखिए ये इग्नियस रॉक्स है, ये इग्नियस रॉक्स जो है हीट और प्रेशर का क्या बन जा रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जा रहा है। ये सेडिमेंट जो है ये बहुत सालों के बाद में जो है ये जम के क्या बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं क्या शुरू हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं ये जो रॉक साइकिल जो है ये लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चेंज हो रहा है। तो आज जो है हम जाने रॉक साइकिल, टाइप्स ऑफ रॉक्स, डिफिनेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और मैं लास्ट क्लास में जो है मैं लास्ट वीडियो I had taught you about the structure of the earth. So today students, this chapter is completed. In my next class, I'll start a new chapter of history or civics. Thank you.